چلیں آپ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے ثنا کا ترجمہ پڑھا تھا، نماز ہم نے شروع کی ہے، تو آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک ایک لفظ کا. تو کل ہم نے حاضر کی ضمیریں پڑھائی تھیں، آج ہم فعل پڑھائیں گے کہ یہ اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے. ایک ہی دفعہ سمجھ لیں گے تو پورے قرآن مجید کے اندر بھی یہی طریقہ کار ہے عربی کو سیکھنے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عربی میں ہمارے اردو اور انگلش میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. عربی میں 2 زمانے ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع. ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال جو ہے مضارع، حال اور مستقبل اس میں جمع ہوتے ہیں. ہم دیکھیں گے کاتبہ، جو بھی قرآن مجید میں فعل اس وزن پہ آئے گا ہم اس کا ماضی میں ترجمہ کر دیں گے. کاتبہ اس نے لکھا، پاسٹ ٹینس میں اس ترجمہ کریں گے، کاتبہ اس نے لکھا. یہ 4 حرف ہیں جو ہے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مضارع فعل ماضی سے مضارع بن گیا ہے. یا، تا، الف، نون. یا جو ہے 3rd پرسن کو ظاہر کرتا ہے، وہ کو، اور تا 2nd پرسن تم کو، اور الف 1st پرسن میں کو، اور نون 1st پرسن پلورل ہم کو ظاہر کرتا ہے. کاتبہ اس نے لکھا. اگر اس فعل کے شروع میں یا لگ جائے تو یہ مضارع بن جائے گا یکتب. مضارع کے آخر میں پیش ہوتی ہے یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں جمع ہوتے ہیں، تو یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. اگر شروع میں تا لگ جائے تو تا 2nd پرسن تم کے لیے آتی ہے، تکتب تم لکھتے ہو یا لکھو گے. اور اگر الف لگ جائے تو اکتب میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا. الف کس لیے لگتا ہے؟ 1st پرسن کے لیے، میں کے لیے. اور نون اگر لگ جائے فعل کے شروع میں تو یہ 1st پرسن پلورل کے لیے آتا ہے. نکتب ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے. ہم ایک ہی دفعہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، پورے قرآن مجید کے اندر بھی یہی قانون جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. کاتبہ اس نے لکھا، ماضی میں پاسٹ ٹینس میں ترجمہ کر دیں گے. اس وزن میں جو بھی فعل آئے گا ہم ماضی میں ترجمہ کریں گے. اگر اس فعل کے شروع میں یا، تا، الف، نون یہ 4 حروف میں سے کوئی لگ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ مضارع بن گیا ہے. اگر یا شروع میں لگ جائے یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. اگر تا شروع میں لگ جائے تکتب تم لکھتے ہو یا لکھو گے. اگر الف شروع میں لگ جائے اکتب میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا. اگر نون شروع میں لگ جائے نکتب ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں ہم اعوذ کس طرح بنا ہے. اعوذ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین واو ذال. آزا، آزا اس نے پناہ طلب کی، اس نے پناہ مانگی یا پناہ طلب کی. آزا ماضی میں ترجمہ کر دیں گے، اس نے پناہ مانگی، اس نے پناہ طلب. اگر یا شروع میں لگ جائے تو یعوذ وہ پناہ طلب کرتا ہے یا کرے گا. اس میں حال اور مستقبل دونوں آ گئے. یعوذ وہ پناہ طلب کرتا ہے یا کرے گا. اگر تا شروع میں لگ جائے تو تعوذ تم پناہ طلب کرتے ہو یا کرو گے. اگر الف شروع میں لگ جائے اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں
या करूँगा। नाउज़ु, हम पनाह तलब करते हैं, या करेंगे। आज़ा, उसने पनाह तलब की, माजी में तर्जुमा कर देंगे। अगर या शुरू में लग जाए तो याऊज़ु, वो पनाह तलब करता है या करेगा। अगर ता शुरू में लग जाए ताऊज़ु, तुम पनाह तलब करते हो या करोगे। अगर अलिफ शुरू में लग जाए आऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ या करूँगा। अगर नून शुरू में लग जाए नाऊज़ु, हम पनाह तलब करते हैं या करेंगे। यहाँ ताऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ, बिल्लाही। बाकी मैंने कल बताया था कि 14 मानी में इस्तेमाल होता है। यहाँ बा जो है के साथ अल्लाह, अल्लाह बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये इलाह था, और उसके शुरू में अलिफ लाम जब लग गया तो लाम का लाम में अदगाम हो गया और ऊपर शद आ गई। अल्लाह जो है, अरब भी जो है जब अल्लाह कहते थे तो उन्हें पता होता था कि जिसने आसमान और ज़मीन बनाया, सब चीज़ें बनाई, अल्लाह, वरना वो इलाह रखे हुए थे उनके पास। जब अलिफ लाम मारफा का शुरू में लग गया तो अल्लाह हो गया। मिन उर्दू में हम इस्तेमाल लफ्ज़ करते हैं मिन जानिब अल्लाह, तो अल्लाह की तरफ से। मिन से अश-शैतान, शैतान लफ्ज़ शैताना से बना है। शैताना अलिफ लाम इसमें मारफा का है ख़ास करने के लिए, और शैताना का मानी होता है दूर होना, हर भलाई और हर खैर से दूर होना। अर्रजीम, अलिफ लाम जो है वो ख़ास करने के लिए, मारफा बनाने के लिए आया है। रजीम, रजीम लफ्ज़ फ़ाइल के वज़न पे लफ्ज़ रजम था। रजम हम कहते हैं कि जो है पत्थर मार कर भगाया हुआ, तो रजीम इसलिए फ़ाइल के वज़न पे आया है। ये उसकी सिफत है शैतान की, तो मरजूम के मानों में पत्थर मारा हुआ, इसीलिए हम उसका फिर तर्जुमा मरदूद कर देते हैं। आऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिन से अश-शैतान। जब अलिफ लाम शुरू में लग गया तो वो शैतान जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, ख़ास शैतान। अर्रजीम मरदूद। आऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिन से अश-शैतान, शैतान से, अर्रजीम मरदूद से, शैतान मरदूद से। फिर देख लें, हम दोबारा कर लेते हैं। आज़ा, उसने पनाह तलब की। अगर या शुरू में लग गया तो याऊज़ु मज़ारे बन गया। वो मज़ारे में हाल और मुस्तक़बिल दोनों जमा होते हैं ज़माने। याऊज़ु, वो पनाह तलब करता है या करेगा। अगर ता शुरू में लग गया ताऊज़ु, तुम पनाह तलब करते हो या करोगे। अगर अलिफ शुरू में लग गया तो अलिफ, आऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ या करूँगा। अगर नून शुरू में लग गया तो नाऊज़ु, हम पनाह तलब करते हैं या करेंगे। यहाँ था आऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ। बाकी मैंने के साथ की, बिल्लाही, अल्लाह की, मिन से अश-शैतान, शैतान से। शैताना क्या होता है? शैतान जो है हर फ़याल के वज़न पे आया है, तो हर जो है खैर और भलाई से दूर। अर्रजीम, रद्द किया हुआ, मरदूद किया हुआ। आऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह तलब करता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से, अर्रजीम मरदूद से। आज हमने जो है ज़माना किस तरह इस्तेमाल होता है, इसमें माजी और मुज़ारे पूरे को एक दफ़ा समझने की बात है। अगर हम ये 4 हर्फ याद रख लें, या ता अलिफ नून, तो अगर हम इसको या तान याद रख लें तो इंशाअल्लाह हमेशा याद रहेगा। या ता अलिफ नून, या थर्ड पर्सन के लिए वो के लिए आता है, ता सेकंड पर्सन तुम के लिए आता है, अलिफ फर्स्ट पर्सन मैं के लिए आता है, और नून फर्स्ट पर्सन प्लूरल हम के लिए आता है। आऊज़ु हम अगर देखें तो हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तावीज़। तो तावीज़ लफ्ज़ किस जो है वो किससे बना है?
हाजा यऊज़ु से बना है। और तावीज़ जब हम गले में डाल लेते हैं तो हम समझते हैं कि पनाह में आ गए, हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो पनाह मांगता कौन है? जो कमज़ोर होता है। एक है पनाह मांगने वाला, एक है पनाह देने वाला, एक है पनाह मांगता कौन है? जो अपने आप को कमज़ोर समझता है। और पनाह वो किससे पनाह मांगता है? जिसको वो समझता है कि वो ताकतवर है, वो मुझे पनाह दे सकता है। हम इसीलिए अल्लाह की पनाह जो है, अल्लाह से पनाह जो है की पनाह तलब करते हैं। किससे? शैतान जो है वो, उसने क्या कहा था कि मैं, जब आदम अलैहिस्सलाम को उसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि ऐ अल्लाह ताला, इसको तूने मट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया, मैं आला हूँ, इसलिए जो है मैं सजदा मैंने नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने फिर जो है शैतान मरदूद, उसको जो है इब्लीस जो था, उसने कहा मैं जो है दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हमला करूंगा। इसलिए वो इंसानों के ऊपर हर तरफ से, और उसका पूरा ग्रोह लश्कर हमलावर हो जाता है इंसानों के ऊपर, और वो हमें देख सकता है, हम उसे नहीं देख सकते। इसलिए हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं, क्योंकि वो दाएं बाएं आगे पीछे से हमला करता है। तो आऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह तलब करता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से, अर्रजीम, मरदूद से। इंशाअल्लाह कल हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान शरीफ से पहले पहले हम इंशाअल्लाह नमाज का तर्जुमा मुकम्मल कर लेंगे। अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद और नमाज समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।